Hey guys, welcome to this video. Now this video is purely about this build जिसमें NR200P from Cooler Master में हमने काफ़ी कुछ डाल दिया है. काफ़ी कुछ का मतलब इसमें Z490 Unify है, Mini ITX, इसमें 10900K है, एक 240mm रेडिएटर है और गीगाबाइट का वाइट कलर का विजन OC वाला एक ग्राफिक कार्ड है 3080 वाला RTX 3080. So yeah, this video is about that and how this will be better than your Xbox and PS5. So keep watching till the end. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे लेफ्ट में जो बिल्ड है और आपके राइट में जो बिल्ड है वो Xbox और PS5 से ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या आप ये मानोगे? अगर मैं फिर ये कहूँ कि Xbox प्लस PS5 का पावर जोड़ोगे तब भी क्या ये पावरफुल है? द आंसर इज येस, हाँ ये पावरफुल है. Xbox का ग्राफिकल पावर 12 टेराफ्लॉप्स माना जाता है, PS5 का भी 12 टेराफ्लॉप्स है, 12 प्लस 12 24. 3080 Vision D OC is Vision OC is 30 teraflops. 30 मतलब पूरे 6 teraflops ऊपर है. So yes, this tiny box which is tinier than both in terms of volume and height and yeah thickness शायद PS5 से थोड़ा ज़्यादा थिक होगा, but yeah it makes up in volume. So in volume this is lesser than Xbox, this is lesser than PS5 and yet it is more powerful. So now the entire case of console versus PC बात, I mean this video is not about that. This video is about कि Mini ITX build के लिए क्या pros और क्या cons होते हैं. लेकिन a good point to note is consoles एक specific function के लिए बनाए जाते हैं. It's not that PCs can't do that same function. This probably will be double the price or triple the price of a PS5. Eyes closed. What is the price again for this? 2.5 lakhs. So yeah, much more. 5 times. 5 times the price of a PS5. Yeah, PS5 is only 55,000, right? 95. Fuck off. No, उसका actual price 55. That's the grey market price. So compared to grey market price, just double 2.5x है. Actual price के हिसाब से 5 times. No doubt about that, not at all. At the same time, ज़्यादा versatility रहती है. So imagine yourself playing with a wireless controller, FIFA, just below your main home का TV with this build. I mean, for sure it looks better than the Xbox. कोई सवाल ही नहीं है. देख लो इसको. You'll have nice spinning graphic card over there. Upgradable भी है. छोटे size का है. एकदम मस्त है. RGB तो है ही. RGB है. Guys, come on, RGB. But anyhow, point being, this is a huge video in itself. How these graphic cards compare to the new console generation and so on. Comment if you'd like to see a video on that, by the way. So yes, so let's get into small form factor builds now. Controversy कम करते हैं. Small form factor builds के positives की बात करते हैं. Now the positives of small factor builds ये है कि sex appeal देखो इसकी sex appeal कितना sexy लग रहा है. Should we be saying sexy? Fuck it, अब बोल दिया. Sexy लग रहा है. और ये देखो कि कितना handy है. You can easily pick it up. It is space saving. It can go below your TV. It looks like a conversation starter in your house. अगर कोई आपके घर पे आया है एंड यू लाइक, ओह वो क्या है? मेरा नया पीसी. सो आई मीन ऐसे सब हो सकता है. बहुत बढ़िया है उसके लिए. ऑफ कोर्स जो भी चीज़ में कुछ बढ़िया होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं. उसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? यूजुअली मिनी ITX बिल्ड्स के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? नंबर 1 इसका प्रॉब्लम ये होता है कि द पार्ट्स फॉर मिनी ITX बिल्ड्स आर नॉट ईजी टू सोर्स. मिलते ही नहीं है, स्पेशली इंडिया में नहीं मिलते हैं. दिस अ फेयर बिट ऑफ वेट टाइम. ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिला है इसलिए यहाँ है. फेयर बिट ऑफ वेट टाइम. जो छोटे साइज़ के केस होते हैं उनका सप्लाई ही अलग होता है. स्मॉल फॉर्म फैक्टर सप्लाई होता है, टाइम के बाद मिलता है पर मिल जाता है. सेकेंड, लिमिटेड अपग्रेडेबिलिटी होता है. लिमिटेड अपग्रेडेबिलिटी इन द सेंस जो फॉर एग्जांपल द बोर्ड इन दिस इज Z490 Unify. नाउ लिमिटेड अपग्रेडेबिलिटीज़ में क्या है? लिमिटेड अपग्रेडेबिलिटी ये है कि
इसमें हमारा 2 रैम स्टिकी लगती है, 2. बट देन अगेन इफ यू पुटिंग 32x2 यू कैन गो अप टू 64 GB आराम से, आइज क्लोज्ड. सो या लिमिटेड अपग्रेडेबिलिटी रहती है, नंबर ऑफ हार्ड डिस्क कम रहते हैं. बट देन अगेन आजकल 1 TB की M.2 भी आ रही है, 2 TB की M.2 भी आ रही है, उसके साथ साथ एक रेगुलर HDD भी लग सकता है इसमें. सो या इन टर्म्स ऑफ हैविंग स्पेस यू विल हैव इनफ. बट इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन लाइक 10, 15, 16, 20 GB TB की ड्राइव डालनी है, ड्राइवें डालनी है, वो नहीं डाल पाओगे. ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट. तो उसके लिए भी ये दिक्कत वाला है. द फाइनल कॉन सो टू से फॉर सम पीपल, ये कॉन नहीं है, जो अमीर हैं, अंबानी के बेटे हैं, उनके लिए कॉन नहीं होता है. ये है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन. लाइक स्मॉल फॉर्म फैक्टर पावर सप्लाईज आर मच मोर एक्सपेंसिव. व्हाट फॉर व्हाट, द मदरबोर्ड्स आर मच मोर एक्सपेंसिव. फॉर एग्जाम्पल Z490 15, 16, 17 हज़ार में चीपेस्ट वाला मिल जाता है. बट द चीपेस्ट वाला मिनी ITX वाला Z490 विल बी क्लोज टू 27, 28, 30 एंड अबव. So yeah, these are slightly expensive, but for that conversation starter feeling, is it too expensive for that? मैं अमीर लोगों के लिए फ़र्क नहीं पड़ता. So yeah, this is for अमीर folks, rich peoples. फाइनली आखिरी दिक्कत ये है, I mean कुछ लोग के लिए दिक्कत नहीं है, पर्सनली हम लोग के लिए दिक्कत नहीं है. Whenever we get a build like this to do, हमें बहुत मज़ा आता है. It's really fun building a system like this, क्योंकि थोड़ा challenging हो जाता है. It's not as straightforward as everything else. It's a slightly challenging process trying to fit everything, cable managing everything. Cases like this, which is, by the way, this is NR200 from Cooler Master, are really brilliant to build in, and the end result is in front of you. So yeah, that was our short and sweet video. Hope you liked the video. Like, share and subscribe, please. We need the YouTube money to buy a new camera and a new light and some action lighting as well. So yeah. बेल आइकन दबा लो प्लीज़. अगर आप देख भी नहीं रहे वीडियो, लेट इट कीप रनिंग एंड जस्ट गो डू योर थिंग एंड कम बैक. ऐड चलेगा तो पैसे मिलेंगे. थैंक यू. हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो.